آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو. کہنا چاہتے کہ مسلمانوں کو قرآن کہتا ہے کہ قاتل کو دیکھ کے قتل کرو. اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو برابر ہے. اس میں لکھا ہے قرآن مجید میں جب بھی آپ کافر کو دیکھو اس کا قتل کرو. لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے. آؤٹ آف آیت نمبر 1 سے شروع کرو. اس میں لکھا ہے کہ مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ ایک معاہدہ تھا, ایک پیس ٹریٹی تھی, ایک امن کا معاہدہ تھا, سلامتی کا معاہدہ تھا. اور یہ معاہدہ, یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دیا تھا. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں کہتے کہ آپ کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے, اب سدھر جاؤ ورنہ اہل. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرمائے جب کافر, جب دشمن آئیں گے آپ ان کا قتل کرو. اس کا مطلب کہ جب دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے لڑنے کے آ رہے تو ڈرو مت. ہمت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ڈرو مت کرو, ان کا قتل کرو. جنگ کے میدان میں بالکل مثال کے طور پہ اگر پریزیڈنٹ آف امریکہ یا آرمی جنرل آف امریکہ جب جنگ ہو رہی ہے یو ایس اے اور ویتنام کی, تو جنگ کے میدان میں پریزیڈنٹ آف انڈیا یا آرمی جنرل امریکن سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ دشمن جب آئیں گے ڈرو مت, سامنا کرو, قتل کرو, تو یہ صحیح ہے. لیکن اگر میں پس منظر کے خلاف آج اس کو بیان کروں گا کہ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ اس کا قتل کرو, تو میں ایسا الزام لگا رہا ہوں کہ وہ بوچر ہے, کیا وہ کسائی ہے. یہ پس منظر میں صحیح ہے. جب جنگ کے میدان میں دشمن جنگ کے لیے آتے ہیں میدان جنگ میں تو ہمت افزائی کے لیے سپاہ سالار یا پریزیڈنٹ بالکل یہ کہے گا کہ ڈرو مت, لڑو. تو اسی طریقے سے یہ آیت ایک جنگ کے میدان میں کہی گئی ہے کہ جب دشمن آتے ہیں ڈرو مت, آپ کا قتل کرنے آ رہے ڈرو مت, آپ ان کا قتل کرو. اور ایک وہی مشہور رائٹر ہے جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے, اس کا نام ارون شوری ہے. کئی کتابیں لکھا ہے اسلام کے خلاف. ایک کتاب لکھا ہے ورلڈ آف فتواز, اور ورلڈ آف فتواز میں یہ وہی آیت کو کوٹ کرتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5, اور دکھاتا ہے کہ مسلمانوں, قرآن میں لکھا ہے مسلمان کو قتل کرنا چاہیے کافر لوگ کا. اور آیت نمبر 5 سے جمپ مارتا ہے, فوراً جاتا ہے آیت نمبر 7 پر. کیوں 5 سے 7 پہ کیوں جاتا ہے؟ 5 اور 7 کے بیچ میں آیت نمبر 6 کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ 6 میں اس کے بیماری کی جواب ہے, اس کے بیماری کا جواب ہے. 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9, اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ کافر, وہ مشرک, وہ دشمن امن چاہتا ہے اس کو چھوڑ مت دو, اس کو ایسی محفوظ جگہ پر لے کے چھوڑو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر وہ امن چاہتا ہے تو چھوڑ دو, اسے محفوظ کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جا کے چھوڑو. آج کے تاریخ میں سب سے دیالو سپاہ سالار, سب سے دیالو پریزیڈنٹ یہ کہے گا ارے وہ دشمن کو چھوڑ دو. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے چھوڑو مت, حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ اور پھر چھوڑو. اکثر لوگ قرآن مجید کے آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے, اور جہاں بھی آپ قرآن مجید میں اگر دیکھتے ہیں کہ اگر استعمال کرنا پڑتا ہے جہاد کے کئی مرحلے میں نے کہا, اگر if you have to suppose that the last resort, violence, force, طاقت ایک آخری ریسورٹ ہے, آخری علاج ہے. اور اس وقت بھی جہاں بھی آپ پائیں گے قرآن مجید میں آیت لڑنے کی, اس کے فوراً بعد کہا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. کوئی بھی آیت لو, چاہے سورہ توبہ لو یا سورہ انفال لو, سورہ نمبر 8 آیت نمبر 7, اس کے بعد لکھا ہے امن لڑنے سے بہتر ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ میں سمجھاتا ہے کس طریقے سے غیروں تک پیغام پہنچانا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو میں اکثر ٹریول کرتے رہتا ہوں
देकर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, इधर उधर, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। और चूंकि मैं इस्लामिक स्पीकर हूं, दाढ़ी हूं, टोपी, एकदम सॉफ्ट टारगेट। कोट तो पहना है लेकिन दाढ़ी टोपी मतलब, तो मैं प्रिपेयर रहता हूं। मैं मेरे से सवाल जवाब रहेगा और मुझे खुशी होती, दावा का मौका मिलता है। ये सुन्नत है वो अलग बात है, टोपी सुन्नत है, दाढ़ी फर्ज है, जो भी है, एकदम सॉफ्ट टारगेट। अक्सर इमिग्रेशन में पूछताछ होती है। जब मैं क्रिश्चियन मुल्क में जाता हूं तो क्रिश्चियन पूछते हैं कि आप जिहाद में मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, बाइबल में भी लिखा है जिहाद करो, लड़ो, जिहाद जिद्दोजहद करो। नहीं नहीं, लड़ाई में, हाँ लड़ाई में भी मानता हूं, बाइबल में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर नंबर 22 वर्ष नंबर 18 और 20 में लिखा है लड़ो। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 27 और 28 में लिखा है लड़ो। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31 वर्ष नंबर 1 से 18 में लिखा है लड़ो। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 19 वर्ष नंबर 27 में कहा है, 37 में कहा है लड़ो। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 22 वर्ष नंबर 37 में कि टेक अ सॉर्ड एंड फाइट, तलवार लेके लड़ो। वो क्रिश्चियन मुझसे कहता है लेकिन जाकिर साहब ये लड़ाई हक और बातिल के बीच है। तो मैं कहता कुरान में भी वही है, तो मुझे कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। माशाल्लाह मैं कई ईसाइयों से बात करता हूं, अक्सर ईसाई मेरी इज्जत करते हैं, अक्सर मेरे हिंदू भाइयों से भी। माशाल्लाह मेरे हिंदू भाई जो मुझे करीब से जानते हैं, माशाल्लाह बहुत इज्जत करते हैं। इसीलिए इस मैदान में लाखों का मजमा है, लगता है कि 3 लाख से ज्यादा है, इसमें 25% गैर मुसलमान है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और मैं यकसा है। इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए जो चीज उसके समझ में आती है उसकी मिसाल दो। जब मैं हिंदुओं से बात करता हूं तो मैं हिंदुओं से कहता हूं कि आप महाभारत पढ़ चुके? तो क्या पढ़ चुका हूं। नहीं भी पढ़ चुकी कम से कम जानते हैं, क्योंकि कॉमिक अवेलेबल है, टेलीविजन सीरियल अवेलेबल है, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं पढ़ चुका हूं। तो मैं उनसे पूछता हूं अगर महाभारत में पढ़ेंगे तो लड़ाई लड़ने के जो श्लोक है, मंत्रा है, वो कुरान से कई गुना ज्यादा है, सैकड़ों है, हजारों है। तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जो लड़ाई है वो 2 ग्रोह के बीच में, एक हक पे था, एक बातिल पे था, तो हक के लिए लड़ना क्या बुरी बात है। तो मैं कहता हूं कुरान में भी वही लड़ाई का जिक्र है। तो हिंदू कहता है तो मुझे कुरान से कोई गिला शिकवा नहीं। इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं मैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद हवालात पेश करूंगा। हिंदुओं की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता, और भगवत गीता में पढ़ चुका हूं कई बार। भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है। महाभारत जो है ना, चैप्टर नंबर 18 चैप्टर का है, जो महाभारत का हिस्सा है, जिसमें श्री कृष्ण, हिंदुओं मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, तो श्री कृष्ण एक एडवाइस दे रहे हैं, एक मशवरा दे रहे अर्जुन से। तो पूरी भगवत गीता एक मशवरा है, श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। भगवत गीता चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 43 से लेके 46 तक, 43 to 46 में, भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 43 में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि जो लोग अपने परंपरा के उसूलों को, मतलब ग्रेट ग्रेट एंसेस्टर्स के जो रीति रिवाज है, उसके खिलाफ जाता है वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। श्लोका नंबर 44 में कहता है, अर्जुन कहते हैं कि हम आज, क्योंकि आप जानते हैं कि महाभारत एक कथा है जो 2 खानदान के बीच में, एक पांडवा जो 5 थे और कौरव जो 100 थे, उनके दरमियान लड़ाई है।
तो भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 श्लोका नंबर 44 में अर्जुन कहते कि आज हम लड़ रहे हैं और जहन्नम की तरफ जा रहे हैं दुनिया के ऐशो आराम के लिए, राजनीति के लिए, राजधानी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। वर्ष नंबर 45 में अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, मैं पसंद करूंगा कि मैं निहत्था इस जंग में मारा जाऊं, बनिस्बत धृतराष्ट्र के बेटों से लड़ूं। यानी कहते हैं श्री कृष्ण कि मैं पसंद करूंगा निहत्था मर जाऊं मेरे कजन ब्रदर्स के हाथों से। धृतराष्ट्र के बेटे मतलब उनके कजन ब्रदर, उनके भाई के हाथ से मैं पसंद करूंगा मर जाऊं, बनिस्बत मैं उनसे लड़ूं। वर्ष नंबर 46 में 46 में अर्जुन अपने हथियार नीचे छोड़ देता है और अफसोस करने लगता है। उसके फौरन बाद चंद श्लोका बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 2 और 3 में अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन को जवाब देते हैं, ए अर्जुन, ये गलत ख्यालात तुम्हारे दिमाग में कब से आने लगे? तुम ऐसे इंसान हो जो आगे बढ़ते हैं, ये गलत ख्यालात कैसे आने लगे? और आप गलत तरफ क्यों जा रहे हो? अर्जुन को मशवरा दे रहे हैं श्री कृष्ण। आगे जब पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 31, 32 और 33 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि वो धर्म युग में हिस्सा ले। क्षत्रिय का फर्ज है, कंपलसरी है कि वो धर्म युग में हिस्सा ले। अगर वो लड़ने से भाग जाता है तो वो जहन्नम में जाएगा, नरक में जाएगा। श्लोका नंबर 32 और 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। अगर तुम लड़ोगे, श्लोका नंबर 33, आप स्वर्ग में जाएंगे। और अक्सर हमारे जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, अरुण शूरी भी अक्सर हवाला देते हदीस का, जिसका मैंने जिक्र किया हूं। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी में वॉल्यूम नंबर 4, हवाला मैं दे रहा हूं, वॉल्यूम नंबर 4 किताब जिहाद चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो आदमी जिहाद में मरेगा, जिसका इंतकाल होगा, वो जन्नत में जाएगा। और जो वापस आता है महफूज, खुदा उसे माले गनीमत, इस दुनिया की दौलत देगा। ये जो लोग कहते, कैसा मजहब है जो कहता है कि जंग के मैदान में अगर आप मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, वरना आपको दौलत मिलेगी। जब आप भगवत गीता पढ़ते, भगवत गीता में हूबहू वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 37 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ए अर्जुन, अगर तू जंग के मैदान में जाएगा और मारा जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। अगर जिंदा वापस आएगा तो तुझे माले गनीमत मिलेंगी, इस दुनिया की दौलत मिलेंगी। हूबहू एग्जैक्टली जो सही बुखारी में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वही लिखा है भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 37। मैं कहता हूं हिंदू भाइयों से, आप अपनी मजहबी किताब क्यों नहीं पढ़ते? कोई भी हिंदू, अगर मैं ये कहूंगा कि अर्जुन भड़का रहा है, इंसानों से कहता है अपने रिश्तेदारों का कत्ल करूं, मैं शैतानी हरकत कर रहा हूं, मैं पस मंजर के खिलाफ बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूंगा आपका ईश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहा है कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है, बिल्कुल गलत है। मैं पस मंजर के खिलाफ बात कर रहा हूं, कोई भी हिंदू से नहीं मानेगा। लेकिन जब मैं उसको वो कहेगा कि ये तो हक और बातिल के दरमियान लड़ाई है, सच्चाई और झुकाई की है, अगर सच के लिए लड़ने पड़े, चाहे आपकी जान जाओ, चाहे रिश्तेदार के खिलाफ हो, वही पैगाम तो कुरान में लिखेला, हदीस में लिखेला। अभी तक के एक भी हिंदू नहीं है, मैं हजारों से बात किया हूं, जिसने ये कहा कि कुरान में गलत है, हदीस में गलत है। क्योंकि मैं उनको हवाला दे रहा हूं भगवत गीता का। तो जब आप दूसरी मजहबी किताब पढ़ेंगे, अमन कायम होगा। तो लोग जो गलत इरादे से भड़काना चाहते हैं, लोग को दूसरे मजहबी मानने वालों के खिलाफ भड़काना चाहते,